اندر چند ایک سپاہی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ انہوں نے جو ایک خوش رنگ پرندے کو دیکھا تو حیرانی سے بولے، ارے یہ چڑیا اس موسم میں کہاں سے آ گئی؟ آج کل تو یہاں چیونٹی بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے نے بندوق تان لی، میں اسے مار کر کھا جاؤں گا۔ کہتے ہیں زرد چڑیاں بڑی گرم ہوتی ہیں۔ ناگ نے جو دیکھا کہ وہاں اس کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ پھر اڑ کر باہر کو آ گیا۔ امبر وہاں نہیں تھا اور یہی اسے معلوم کرنا تھا۔ اب اس نے اس علاقے کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے، مگر اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ وہ کسی طرح سے انسانی شکل میں آ کر امبر کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اتنا اسے یقین تھا کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں امبر کو سائنسی تجربے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے ایک جگہ تجربہ گاہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا۔ ناگ نے اس تجربہ گاہ میں بھی داخل ہو کر دیکھ لیا، وہاں بھی امبر نہیں تھا۔ ایک طرف چند ایک درخت تھے جن کی شاخیں برف میں چھپی ہوئی تھیں۔ ناگ نے یہاں آ کر کچھ دیر آرام کیا اور سوچنے لگا کہ کس شکل میں ظاہر ہوا جائے۔ اگر وہ انسان بن کر نمودار ہوا تو یہ لوگ اسے گرفتار کر لیں گے کہ یہ اجنبی جاسوس کہاں سے آ گیا۔ پھر کیا کیا جائے؟ آخر ایک ترکیب اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے ایک عورت کا روپ بدل لیا۔ اب وہ ایک موٹی بدی عورت بن چکا تھا جس کے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھی اور وہ کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ ایک سپاہی نے اسے غور سے دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو تم یہاں کبھی دکھائی نہیں دی۔ ناگ نے کہا، جناب میری بیٹی یہاں کام کرتی ہے، آج وہ بیمار ہے، اس کی جگہ میں آ گئی ہوں۔ سپاہی آگے چلا گیا۔ ناگ اب سائنسدان کے کمرے میں آ گیا اور فرش پر جھاڑو دینے لگا۔ اتنے میں روسی کمانڈر اور ڈاکٹر باتیں کرتے اندر آ گئے۔ انہوں نے ناگ کو اہمیت نہ دی کیونکہ وہ عورت کی شکل میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ نوکرانی صفائی کر رہی ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کمانڈر کہنے لگا، اس بار تو وہ بچ کر نہ جانے پائے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، اس بار وہ بچ کر نہ جا بھی نہیں سکتا۔ اس دفعہ اسے ایسی زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے جو بے حد مضبوط ہے، اور پھر اس کے اسٹریچر کے نیچے ایک بٹن لگایا ہے۔ اگر اس نے زنجیریں توڑ کر بھاگنے کی کوشش بھی کی تو اس کے اسٹریچر سے اترتے ہی نیچے والا بٹن اپنے آپ آن ہو جائے گا اور کمرے میں گیس پھیل جائے گی جس سے وہ پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ بہت خوب، لیکن تجربہ جلدی ہونا چاہیے۔ میں آج رات تجربہ شروع کر دوں گا۔ اب ڈاکٹر کی نظر ناگ پر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس عورت کو پہلے نہیں دیکھا گیا۔ ڈاکٹر نے ناگ کو بلا کر کہا، اے عورت، تو کون ہے؟ ناگ نے خالص دیہاتی روسی زبان میں کہا، جناب میری بیٹی آج بیمار ہو گئی تھی، اس کی جگہ میں کام کرنے آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے تعجب سے کہا، لیکن یہاں تمہاری بیٹی تو کام کرتی نہیں تھی، یہاں تو ایک برا نوکر کام کرتا تھا۔ اب ناگ گھبرا گیا اور آئیں بائیں کرنے لگا۔ کمانڈر نے پستول نکالیا، سچ سچ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ ناگ نے جب یہ دیکھا کہ جان بچانا مشکل ہو گئی ہے تو ایک دم سے گہرا سانس لے کر کہا، میں بھوت ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پرندہ بن کر پھر سے اڑ کر باہر کو آ گیا۔ کمانڈر چیخا، یہ امبر کا ساتھی ہے، کم بخت یہاں آ گیا، اسے پکڑو، یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے۔ سب لوگ چڑیا کو تلاش کرنے لگے۔ ہوا میں گولیاں چلائی گئی مگر ناگ بھلا ان کے ہاتھ کہاں آنا تھا۔ سائنسدان اپنی جگہ پر حیران کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک زندہ انسان اس کی آنکھوں کے سامنے پرندہ بن کر بھی اڑ سکتا ہے۔ یہ جادو ہے، سائنس کا مذاق ہے۔ ناگ نے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تھا۔ امبر کو ان لوگوں نے اسی علاقے میں کسی جگہ پر زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اب اس جگہ کی کھوج باقی رہ گئی تھی۔ ناگ نے پرندہ بن کر سارے علاقے کو چھان ڈالا۔ وہاں جتنے مکان تھے سب کے روشن دانوں میں سے جھانک کر اندر دیکھا۔ کسی جگہ کوئی لیبارٹری نہیں تھی۔ امبر کو کسی زیر تعمیر کہ تہ خانے والی لیبارٹری میں قید کیا گیا تھا۔ ناگ تہ خانے کی تلاشی میں پرندہ بن کر نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ انسان کی شکل میں اختیار کرے۔ انسان کی شکل میں آتے اس کے پکڑے جانے کا ڈر تھا، کیونکہ وہاں پر اس قدر تھوڑے انسان رہتے تھے کہ نیا آدمی یا عورت ایک دم سے پہچان لی جاتی تھی۔ رات کا اندھیرا ہونے لگا۔ ناگ نے فیصلہ کیا کسی طرح سے ڈاکٹر یا کمانڈر کے ساتھ رہا جائے، ان کی باتیں سنی جائے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ لیبارٹری کہاں ہے۔ ناگ نے ساری رات پرندہ بن کر ایک درخت کی برف پوش شاخوں میں چھپ کر گزاری۔ دوسرے دن وہ درختوں پر سے اترا۔ اس نے ایک سفید چھوٹے سے سام کی شکل اختیار کی اور برف پر رینگتا ہوا ڈاکٹر کی لیبارٹری میں گھس کر ایک طرف چھپ گیا۔ ابھی ڈاکٹر نہیں آیا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج ڈاکٹر کو نہیں آنا تھا۔ دوپہر تک ناگ نے انتظار کیا، وہاں نہ کمانڈر آیا نہ ہی ڈاکٹر۔ کافی دیر گزر گئی۔ ناگ تنگ آ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہاں ڈاکٹر نہیں آئے گا۔ اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ الماری کے عقب سے نکل کر باہر لیبارٹری میں آئی تھا کہ ایک عورت کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے سانپ کا شور مچا دیا۔ کچھ آدمی لاٹھیاں لے
کر اس طرف دوڑے۔ ایک آدمی نے گرم پانی کا تسلا ہاتھ میں لے لیا۔ ناگ لاٹھی پستول سے نہیں گھبراتا تھا، مگر گرم ابلتے پانی کا برتن دیکھ کر ایک بار تو وہ بھی کام گیا، کیونکہ کھولتا ہوا پانی اسے تباہ کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہلاک ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی نے اس کے ٹکڑے کر کر پھینک دیے تھے، اور پھر امبر ان ٹکڑوں کو ڈبے میں بند کر کر جھیل مانسٹرو لے گیا تھا، اور وہاں کے ناگ دیوتا کے مقدس پانی کی چھینٹوں سے ناگ کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ ناگ نے وہاں سے بھاگنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بھاگا، کیونکہ دروازے میں ایک آدمی گرم پانی کا برتن لیے کھڑا تھا۔ وہ اس طاق میں تھا کہ سانپ ادھر آئے وہ اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال کر ہلاک کر ڈالے۔ ناگ کھڑکی کی طرف لپک کر گیا اور باہر برف پر چھلانگ لگا دی۔ کچھ سپاہی اس کی طرف بھاگے، مگر وہ ان کی پہنچ سے باہر نکل چکا تھا۔ ناگ کی جانب سے عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ وہ جدھر جاتا لوگ اس کی جان کو آ جاتے تھے۔ ایک بار تو جھنجھلا کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک ایک کر کے ان سب کو ہلاک کر ڈالے، پھر آرام سے انسان کی شکل میں آ کر امبر کو تلاش کرے۔ پھر یہ خیال آیا کہ بے گناہ کسی انسان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ناگ رینگتا ہوا برف پر کافی دور نکل گیا۔ سامنے ایک کھمبا سا لگا تھا جس کے اوپر لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ ناگ جا کر اس میں آرام سے لیٹ گیا اور آئندہ کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اب ذرا امبر کی طرف چلتے ہیں۔ اسے اس بار ڈاکٹر نے ایک ایسے سٹریچر پر ڈال کر باندھ رکھا تھا جس کے نیچے ایک خودکار بٹن لگا تھا۔ امبر کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا پایا۔ اس نے زور لگا کر زنجیروں کو توڑ دیا اور اٹھ کر باہر جانے ہی والا تھا کہ اس کے اٹھتے ہی سٹریچر کے نیچے والا بٹن اپنے آپ دب گیا اور کمرے میں پھر سے گیس پھیل گئی۔ اس گیس کی وجہ سے امبر ایک بار پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ڈاکٹر اور کمانڈر نے دوسری بار پھر اسے اسٹریچر پر زنجیروں سے کس کر باندھ دیا۔ اسے ٹیکے لگا کر دوائیاں سنگا کر ہوش میں لانے لگے۔ امبر کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے کام ڈاکٹر نے یہ کیا کہ اسے بتا دیا کہ وہ ایک اسٹریچر پر لیٹا ہے، جنہیں اس نے زنجیریں توڑ کر بھاگنے کی جیسے ہی کوشش کی کمرہ اپنے آپ گیس سے بھر جائے گا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ امبر نے دیکھا ڈاکٹر اور کمانڈر نے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ یہ سوچ کر بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا کہ اس کے ساتھ یہ لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ امبر لاچار ہو گیا۔ اس نے آنکھ بھر کر دل میں کہا کہ ان لوگوں نے بڑی مکاری سے اسے بے بس کر دیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ابھی انہیں ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ دل میں یہ سوچ کر امبر چپکا ہو رہا تھا۔ اب اسے ناگ کا خیال آیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگ ضرور اس کی تلاش میں نکلا ہوگا اور اس کی مدد کو آئے گا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر اپنے ساتھ 2 اسسٹنٹس لے کر اندر آ گیا۔ ایک نیا تجربہ شروع ہونے والا تھا۔ امبر کے چہرے پر طرح طرح کے آلات سے روشنی اور شعاعیں ڈالی گئیں۔ پھر کمرے کی بتی گل کر کے اندھیرے میں اس کی آنکھوں کی پتلیوں کو غور سے دیکھا گیا۔ امبر پریشان ہو کر بولا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں کئی ہزار سال سے زندہ ہوں، میں نے ہزاروں بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، مجھے موت نہیں ہے، تم مجھ پر کیا تجربے کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ڈاکٹر پتھر کا بت بن کر امبر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ تم ہزاروں سال سے زندہ ہو؟ ہاں، امبر بولا، میں نے قدیم بابل، مصر، یونان اور روم کی تہذیبوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ کلوپٹرا کا جلوس میرے سامنے مصر میں داخل ہوا تھا۔ میں سکندر کی فوجوں کے ساتھ پنجاب آیا تھا۔ میں تاریخ کے ہر دور کا گواہ ہوں۔ تمہیں تجربے کر کر مجھ سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا، کیونکہ میرے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، میری روح تم لوگوں سے مختلف ہے اور تم لوگ روح کو نہیں دے سکتے، اسی لیے مجھے جانے دو اور تم لوگ آرام سے اپنا کام کرو۔ جس شے کے پیچھے تم لگے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکے گی۔ تمہارے سپاہی میری طرح سے غیر قانونی نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تم دنیا والوں کے لیے ایک مصیبت بن جاؤ گے۔ تم دنیا کے ہر ملک پر حملہ کر کے اس کی تہذیب اور وہاں کے انسانوں کو تباہ و برباد کر دو گے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اس کے ساتھی امبر کی باتوں کو بت بن کر سن رہے تھے۔ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ایک انسان 5000 برس تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عقل اسے تسلیم نہیں کرتی تھی، سائنس اسے تسلیم نہیں کرتی تھی، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی تھی، سائنس اسے تسلیم نہیں کرتی تھی، مگر اس کا زندہ ثبوت ان کے سامنے امبر موجود تھا۔ کہیں یہ شخص جھوٹ نہ بول رہا ہو، تو پھر اس پر گولی چاقو اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیا اسے جلا کر دیکھا جائے؟ شاید وہ جل جائے۔ ڈاکٹر نے اسپرٹ لیمپ جلا کر امبر کے کان کے نیچے رکھ دیا۔ شعلے کی لو کان کے نیچے جل رہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امبر کا کان جل کر سیاہ ہو جاتا اور امبر چیخ مار کر اچھل پڑتا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ امبر کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے کان کے نیچے اسپرٹ لیمپ جل رہا ہے، یہاں تک کہ اسپرٹ لیمپ کی ساری اسپرٹ ختم ہو گئی اور لیمپ اپنے آپ بجھ گیا۔ ڈاکٹر نے امبر کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ ذرا سا کالا پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کپڑے سے صاف کیا تو وہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ کان کی جلد ذرا سی گرم بھی نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی ٹھنڈی تھی۔ ڈاکٹر چکرا گیا۔ اس کے ایک اسسٹنٹ نے سگریٹ سلگا کر امبر کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ امبر کو کچھ نہ ہوا، سگریٹ بجھ گیا۔ جیسے کسی دیوار کی اینٹ کے ساتھ سگریٹ لگانے سے اینٹ تو نہیں جلتی، مگر سگریٹ بجھ جاتا ہے۔
डॉक्टर ने सार पकड़ लिया। ये शख्स इस सदी का सबसे बड़ा अजूबा है। मैं इसे दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में पेश कर नोबेल प्राइज हासिल करूंगा। अंबर ने कहा, तुम ऐसा करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे डॉक्टर। याद रखो, अगर तुमने मुझे रिहा ना किया तो तुम्हारी मौत बहुत करीब आ जाएगी। मुझ पर आज तक अगर किसी शय ने असर किया है तो वो तुम्हारी आज के जमाने की तेज बदबूदार गैस है। मुझ पर धुएं का भी कुछ असर नहीं होता, मगर तुम्हारी गैस के हाथों बेबस हो गया हूँ। बहरहाल मेरा साथी नाग जरूर यहाँ पहुंच जाएगा। वो बहुत जल्द यहाँ आकर तुम सबको हला करके मुझे छुड़ा लेगा। डॉक्टर की समझ में अंबर की सारी बातें आने लगी थी। उसने अंबर के साथी नाग को परिंदा बनकर भी उड़ता देख लिया था। उसने अंबर को बताया नहीं था कि नाग वाकई वहां पहुंच चुका है। डॉक्टर ने अंबर से कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो कमांडर को जनरल बनने का लालच है। ये इसी की सारी कारस्तानी है। बहरहाल मुझे तुम माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा देर इस स्ट्रेचर पर नहीं पड़े रहोगे। कल या परसों तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि हम तुम्हें मार नहीं सकते। बहरहाल अगर तुम मुझे भी अपने साथ रहने की इजाजत दे दो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। अंबर ने कहा कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम बूढ़े आदमी हो, हमारी जिंदगी की मुसीबतों का मुकाबला ना कर सकोगे और जल्द ही मर जाओगे। बेहतर यह है कि तुम अपने रास्ते पर चले जाओ और हमें हमारे रास्ते पर चलने दो। डॉक्टर ने कहा, मुझे तुमसे तहरीक की सच्ची कहानियां सुनने का शौक है। तुम तहरीक के सारे दौड़ के गवाह हो। मैं जानना चाहता हूँ तुमसे तहरीक के बड़े बड़े वाकयात सुनो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें जिंदा जावेद किसने बनाया। अंबर हंसा, ये एक राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। क्या अब तुम मेरे स्ट्रेचर के नीचे से बटन नहीं ऑन करोगे? डॉक्टर ने कहा, जरूर जरूर, लेकिन मैं कमांडर की इजाजत के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। इतने में कमांडर भी आ गया। जब उसे मालूम हुआ कि अंबर वहां से फरार होने की सोच रहा है और डॉक्टर उसकी मदद करना चाहता है, तो इसने उसी वक्त डॉक्टर को गिरफ्तार करवा लिया और जेल में डाल दिया। हेडक्वार्टर से दूसरा साइंसदान आ गया जिसने अंबर पर नए सिरे से तजर्बे शुरू कर दिए। अंबर को स्ट्रेचर से बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा था। नाग एक रोज अपने खंबे की लकड़ी के डब्बे में बैठा था कि उसने आवाज सुनी। तारों में से फोन की आवाज बाहर आ रही थी। हेलो, इसे आज बर्फ के नीचे गहरे समंदर में गर्क कर दिया जाए, ठीक है? अगर वो नहीं मर सकता तो क़यामत तक बर्फ के समंदर के नीचे दफन रहेगा। इसे गैस के सिलेंडर के साथ बेहोश कर बांध दिया जाएगा। नाग के कान खड़े हो गए। जरूर ये अंबर के बारे में बात हो रही थी। उसने सुना दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसे किस वक्त ले जाया जाएगा? आज आधी रात को। हाँ हाँ, सुरख तजर्बा गाह वाली इमारत से। आवाजें आना बंद हो गई। सुरख तजर्बा गाह वाली इमारत तलाश करनी चाहिए। नाग खंबे से नीचे उतर आया। उसने घूम फिर कर सुरख इमारत की तलाश शुरू कर दी। वहां कोई भी इमारत सुरख नहीं थी। नाग ने सोचा कि जमीन पर रेंग कर वो इमारत को नहीं ढूंढ सकता, उड़कर जायजा लेना चाहिए। चुनाचा वो परिंदा बनकर उड़ा, ऊपर उड़ा। हवा में जाकर उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। काफी दूर से एक जगह सुरख डब्बा सा दिखाई दिया। वो उड़कर वहां गया। ये एक तिकोनी छत वाली सुरख इमारत थी। एक ही कमरा था जिसकी तिकोनी छत पर बर्फ जमी थी। नाग समझ गया कि यही वो इमारत है जिसके अंदर अंबर कैद है और जहां से उसे मौत के समंदर में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा है। नाग जमीन पर आ गया। वो सांप बनकर बर्फ पर रेंगता हुआ लाल इमारत के दरवाजे पर आ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। वहां कोई सुराग भी नहीं था कि जिससे गुजरकर नाग अंदर जा सकता। वो इमारत के अकब में आ गया। यहाँ एक रोशनदान था, खिड़की नहीं थी। नाग दीवार से रेंगता हुआ ऊपर रोशनदान पर चढ़ गया। वहां एक जगह से शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ था। नाग ने अंदर जाकर देखा कि अंबर एक स्ट्रेचर पर बेहोश जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। साइंसदान उसके सराहने खड़ा एक आड़ी से अंबर का दिमाग काटने की तैयारियां कर रहा था। नाग को मालूम था कि ये लोग अंबर का सर ना काट सकेंगे, लेकिन इसने जब साइंस की बात सुनी तो चौंक पड़ा। वो अपने साथी डॉक्टर से कह रहा था, मेरा ख्याल है हमें इस पर तेज गैस छोड़नी चाहिए। गैस की वजह से ये हमेशा हमेशा के लिए बेहोश होकर रह जाएगा। फिर हम अंदाजा लगा सकेंगे इस शख्स की जिंदगी में क्या राज है। इंसानी कुर्बानी। सांप रोशनदान से अंदर आ गया। अब वो अंबर को इन जालिम लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ये लोग उसे सारी जिंदगी के लिए बेहोश रखने की तैयारियां कर रहे थे। किसी को खबर ना हुई कि एक सफेद सांप रोशनदान के जरिए से अंदर दाखिल हो चुका है। सांप दवाओं की अलमारी के अकब में से निकलकर साइंसदान के करीब मेज पर आकर बैठ गया। उस वक्त साइंसदान अंबर को एक ऐसी गैस सुंघाने के लिए तैयार हो रहा था जिसके सूंघ लेने से अंबर शायद जिंदगी भर बेहोश रहता। एक तरह से ये इसकी मौत थी। नाग मेज पर से किसका ही था कि उसके जिस्म से टकराकर एक शीशी फर्श पर गिर पड़ी। एक डॉक्टर ने चौंक कर देखा और चिल्लाया, सांप सांप। साइंसदान अंबर की
नाक के आगे गैस का सिलेंडर करने ही वाला था कि सांप अपनी जगह से उछला और साइंसदान की गर्दन के गिर्द लपेटकर उसके हलक पे डस लिया। साइंसदान ने जिंदगी में बड़े बड़े जहर तैयार करके लोगों को दिए थे, लेकिन ऐसा जहर उसने कभी नहीं देखा था जैसा कि सांप ने उसके बदन में दाखिल किया था। सांप के जहर ने इसके बदन में जाते ही पहला काम ये किया कि उसके सारे जिस्म से हिलने जुलने की ताकत छीन कर इसे पत्थर कर दिया। फिर इस पर लर्जा तारी हो गया। इतने में सांप दूसरे डॉक्टर को भी डस चुका था और इसका जिस्म भी सुन्न हो गया था। उधर साइंसदान अपने गले को पकड़कर, उधर दूसरा डॉक्टर भी जमीन पर बेहोश हो गया। सांप ने उसके साथ इंसान की शक्ल में इख्तियार कर ली। उसने पहला काम यह किया कि स्ट्रेचर के नीचे इस बटन को उखाड़कर गैस का सिलेंडर अलग कर दिया जिसमें से गैस निकलकर अंबर को बेहोश कर देती थी। फिर उसने अंबर को होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। अंबर को होश नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल बेहिस होकर पड़ा था। नाग ने सोचा कि अंबर को हर हालत में यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहिए, कोई दूसरा साइंसदान यहाँ आकर इसे बेहोश कर दे। इससे पहले उसने उस जगह से पानी का जग उठाकर सर पर डाल दिया, मगर पानी का भी अंबर पर कोई असर ना हुआ। इतने में दरवाजा खुला और कमांडर अंदर आ गया। उसके साथ एक डॉक्टर भी था। वो नाग को देखकर चौंके। फिर जो उन्होंने अपने साइंसदान और इसके साथी डॉक्टर की लाशें देखी तो इसकी आंखों में खून उतर आया। तुम कौन हो? तुमने मेरे आदमियों का खून किया है। कमांडर ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। नाग दूसरी तरफ हट गया। इसके साथ ही उसने उड़ने वाले सांप की शक्ल तैयार कर ली। ये सांप है, कमांडर के मुंह से निकला, लेकिन नाग इतने में उसके माथे पर डस चुका था। इसका साथी भागने लगा तो सांप ने उसका रास्ता रोक लिया और फन उठाकर ले आने लगा। डॉक्टर को ठंडे पसीने आ गए। नाग उसी वक्त इंसानी शक्ल में आ गया और डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि मैं एक जबरदस्त ताकत रखता हूँ। अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। जाओ, इन लोगों का हुआ है जिनकी लाशें तुम्हारे सामने पड़ी हैं। डॉक्टर ने कांपते होंठों से कहा, मैं हर हुक्म की तमील के लिए तैयार हूँ। नाग बोला, फिर जल्दी से मेरे भाई को होश में ले आओ, इसे गैस सूंघाई गई थी। डॉक्टर ने अंबर की तरफ गौर से देखा, फिर मेज पर से एक दवाई उठाकर उसे रुई में भिगोया और अंबर की नाक के आगे रख दिया। अंबर ने 2-3 सांस लिए होंगे कि इसे होश आ गया। इसने आंखें खोलकर नाग को देखा। नाग भैया, तुम आ गए? नाग ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आया। अंबर ने उठते हुए कहा, मेरे स्ट्रेचर के नीचे गैस का बटन है जो मेरे उतरते ही दबकर गैस खारिज कर देगा और हम सब बेहोश हो जाएंगे। नाग ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, इस बटन को मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हारे उठने से गैस खारिज होकर किसी को बेहोश नहीं करेगी, तुम बड़ी आसानी से उठ सकते हो। अंबर स्ट्रेचर से नीचे उतरा, उसने सर को पकड़कर कहा, ऐसी गैस मैंने सारी जिंदगी नहीं सूंघी थी। कम बखत, इन लोगों ने क्या क्या चीजें इजाद कर रखी हैं, ये तो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। नाग ने कहा, इन बातों को छोड़ो, यहाँ से बाहर चलो, अब हमें बहुत काम करने हैं। अंबर ने अचानक फर्श पर लाशें देखी तो बोला, ये लोग कैसे मरे हैं? नाग ने कहा, अगर मैं इन्हें हलाक ना करता तो ये तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेहोश करने की तैयारियां कर रहे थे। फिर तो इन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए थी। नाग ने डॉक्टर से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जान बची, 100 लाख हो पाए। वो तेजी से बाहर निकल गया। नाग बोला, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें निकल जाना चाहिए। इनकी गैस का गुबार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है हमें भागता देखकर ये कोई ऐसा बम फेंक दे जिससे बेहोश कर देने वाली गैस फैल जाए। अंबर और नाग लेबोरेटरी से बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। आसमान को बूढ़े बूढ़े बादलों ने ढांप लिया था और साफ साफ था कि बर्फानी तूफान आने वाला है। नाग ने अंबर से कहा, हमें यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर फरार होना है, इधर आओ। हेलीकॉप्टर उधर मैदान में खड़ा है। नाग अंबर को लेकर एक तरफ भागा। वहां एक जगह हेलीकॉप्टर खड़ा था। नाग ने अंबर को अंदर बैठने का इशारा किया। दोनों इसमें सवार हो गए। नाग ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। उधर सब लोगों का पता चल गया। कमांडर और साइंसदान को हलाक कर अंबर अपने साथी के हमरा भाग रहा है। फौज के सिपाही राइफलें लेकर भागे। इतने में हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। इसकी आवाज सुनकर फौजी मैदान की तरफ भागे। इस दौरान में हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ गया था। सिपाहियों ने गोलियों की बारिश शुरू कर दी, मगर हेलीकॉप्टर बूढ़े बादलों में छुप गया और एक भी गोली उसे ना लगी। नाग ने जेब में से एक बम निकालकर नीचे फेंक दिया। अंबर ने पूछा, अरे ये क्या? नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैं एक आखिरी तोहफा इन लोगों को देने के लिए इनकी लेबोरेटरी से ही साथ ले आया था। ये क्या था? जरा नीचे जानकर तो देखो। नाग हेलीकॉप्टर को नीचे ले आया। अंबर ने देखा कि बम नीचे जाकर फट गया और इसमें से गैस का एक बादल निकलकर जमीन पर फैल गया और इसकी तेज गैस ने सारे सिपाहियों को बेहोश करके जमीन पर औंधे मुंह गिरा दिया था। अब ये 2 दिन तक बेहोश रहेंगे। हेलीकॉप्टर एकदम आसमान की तरफ उठा और बाएं तरफ मुड़ गया।
अंबर ने कहा, ये अच्छा हुआ कि हमें इस बर्फ के जालिम सहरा को अबूर करने के लिए एक सवारी मिल गई। नाग ने कहा, सवारी भी ऐसी कि हवा में उड़न खटोले की तरह से उड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस उड़न खटोले में ईंधन कितना है ये भी तो देख लो। नाग ने अंबर की इस बात पर मीटर को देखा जो ईंधन की मकदार जाहिर करता था। वो कुछ परेशान हो गया। अंबर ने पूछा, क्या बात है? नाग ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ईंधन तो सिर्फ 2-3 घंटे का है। फिर क्या करें? ये बर्फ का सहरा भी तो अभी काफी लंबा है, शायद इसे अबूर करते हुए हमें 1 दिन लग जाएगा। इसका भी इंतजाम हो जाएगा। हेलीकॉप्टर को प्रवास करते तीसरा घंटा जा रहा था कि उन्हें खुशनसीबी से दूर एक कैंप दिखाई दिया। बर्फ की सफेद चादर की हल्की हल्की रोशनी रात के अंधेरे को हटा रही थी। नाग ने कैंप से कुछ फासले पर हेलीकॉप्टर उतार दिया। मैं आगे जाकर पता करता हूँ कि ये लोग कौन हैं। इतना कहकर नाग बर्फ पर खिसकता हुआ कैंप के पास आ गया। लकड़ी का एक लंबा सा कमरा था जिसकी छत पर बर्फ की तह जमी थी। दरवाजा बंद था। अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। नाग ने सुराख में से झांक कर देखा। अंदर 3-4 फौजी गर्म समूर की टोपियां सरों पर रखे कंबल ओढ़े दीवार से लगे सो रहे थे। एक सिपाही मशीन गन पास रखे ऊँग रहा था। दरमियान में तेल का लैंप जल रहा था। नाग को पेट्रोल के डब्बे कहीं नजर न आए। वो वापसी के लिए पलटा तो इसके पांव दरवाजे की एक लकड़ी से टकरा गया। हल्का सा शोर हुआ। सिपाही ने आवाज लगाई, कौन है बाहर? नाग ने कोई जवाब ना दिया। उसका ख्याल था कि ये शख्स आराम से सो जाएगा। बोला, इतनी सर्दी में कौन उठकर बाहर आता है? मगर वो भी कोई अहमक शख्स था। उठकर मशीन गन लिए बाहर आ गया। कौन है? वो इतनी जल्दी से आया कि नाग अपने आप को ना छुपा सका। सिपाही ने जो अपने सामने एक आदमी को चोरों की तरह से पीछे हटते देखा तो इस पर गोली चला दी। नाग जल्दी से जमीन पर बैठ गया। सिपाही ने जमीन की तरफ नाली का रुख कर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। नाग खुशकिस्मत था कि गोलियां उसके करीब से होकर गुजर गईं। अब उसे जान बचाने की फिक्र हुई। उसने 1 मिनट के अंदर अंदर अपना रूप तब्दील कर लिया। वो इंसान से परिंदा बन गया। सफेद बुराक कबूतर जोड़कर फिजा में गुम हो गया। सिपाही ने यह मंजर देखा तो खौफ से कांपने लगा। भागकर अपने कमरे में गया और साथियों को जगाकर सारा माजरा सुनाया। वो इसका मजाक उड़ाने लगे, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। नाग ने एक बार फिर इंसान का रूप बदला और अंबर को जाकर सारी बात बता दी और कहा, वहां तुम्हारा काम है, तुम जाकर इनसे मालूम करो कि पेट्रोल कहाँ है। ठीक है, मैं जाऊंगा, तुम इसी जगह में इंतजार करना। अंबर जब कैंप के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से सारे सिपाही जाग रहे थे और इंसान के जानवर बनने की बातें कर रहे थे। अंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो सबकी आंखें फैल गईं। कोई ना उठे, मैं जाकर पता करता हूँ। 5 सिपाहियों ने मशीन गन्ने तान ली। छठा सिपाही पिस्तौल लेकर दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? अंबर ने करीब जाकर कहा, हमारा हेलीकॉप्टर का ईंधन ना होने की वजह से यहाँ बेकार हो गया है, हमें पेट्रोल चाहिए, क्या तुम लोग हमें पेट्रोल दे सकोगे? सिपाही ने पिस्तौल से अंबर के सर का निशाना लेकर कहा, तुम कौन हो? अब सारे मशीन गन्ने तान कर अंबर के सामने आ गए। तुम हमारी कैद में हो, अंदर आकर कोने में लग कर बैठ जाओ। अगर भागने की कोशिश की तो हमारी गोलियां तुम्हारे परखचे उड़ा देंगी। अंबर ने रौबदार आवाज में कहा, क्या बक बक लगा रखी है तुमने? बताओ पेट्रोल कहाँ है? हमारे पास इतना वक्त नहीं। सिपाही कहकर मारकर हंस पड़े। एक ने कहा, इसे शूट कर दो। अंबर ने आगे बढ़कर पिस्तौल छीनने की कोशिश की। सिपाही ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। चारों गोलियां अंबर के सर पर लगी और अलग लग कर नीचे गिर पड़ी। दूसरे सिपाहियों ने मशीन गन की बाढ़ मारी। सारी गोलियां खत्म हो गई और सारी की सारी गोलियां अंबर के जिस्म से लगकर फर्श पर गिरती चले गईं। सिपाहियों की तो जैसे जान ही निकल गई। उनकी समझ में नहीं आया था कि ये मामला क्या है, वो क्या देख रहे हैं। अंबर ने आगे बढ़कर एक सिपाही की मशीन गन नोच ली। अब अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको बारी बारी हलाक कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ पेट्रोल चाहिए। मुझे मालूम है तुम्हारे पास पेट्रोल मौजूद है क्योंकि तुम्हारे मकान के अकब में 2 जीपें खड़ी हैं। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, जनाब हमें माफ कर दे, पेट्रोल का जखीरा मकान के अकब में मौजूद है। अंबर ने सिपाहियों को साथ दिया और मकान के अकब में आ गए। यहाँ बर्फ के नीचे पेट्रोल का बहुत बड़ा टैंक दफन था। अंबर ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर यहाँ ले आऊं। अगर तुम लोगों ने कोई शरारत करने की कोशिश की तो याद रखो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं तो मार नहीं सकूंगा लेकिन तुम में से एक भी जिंदा नहीं बच सकेगा। सिपाहियों ने कहा कि वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अंबर ने जाकर नाग को सारी कहानी सुनाई। फिर वो हेलीकॉप्टर लेकर कैंप के पिछवाड़े आ गए। उन्होंने पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। उन्होंने जब हेलीकॉप्टर की टंकी पूरी भर ली तो नाग ने कहा, तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन अगर मेरा भाई तुम लोगों को अपनी करामत ना दिखाता तो तुम कभी सीधी राह पर ना आते। नाग और अंबर हेलीकॉप्टर लेकर वहां से उड़ गए। सारी रात वो बल्किस्तान में प्रवास करते रहे। दिन चढ़ा तो उन्होंने कंपास की मदद से इस इलाके का रुख किया जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि जादूगर मारिया को लेकर वहां गया है।
यहाँ उन्होंने एक अजीब बात देखी कि जगह जगह बेशुमार दरख्त उगे हुए हैं। जमीन पर बर्फ भी थोड़ी थी, जिसका मतलब ये था कि कुतुब शुमाली का इलाका खत्म हो रहा था और वादियां शुरू हो रही थी। अंबर ने नाग से कहा, हमें यहाँ किसी जगह पर उतर जाना चाहिए। मुझे यकीन है वो जादूगर जो है वो कहीं मारिया के साथ छुपा होगा। नाग ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता, अभी हमें कुछ और सफर करना होगा। मुझे दूर दूर तक मारिया की खुशबू नहीं आ रही। वो प्रवास करते रहे। हेलीकॉप्टर दरख्तों के ऊपर उड़ता रहा। अब संगलाक पहाड़ियां आ गई थी। इन पहाड़ियों के पीछे एक झील नुमादार हुई। झील के चारों तरफ ऊंचे घने दरख्त थे। इन दरख्तों में एक चट्टान की तकून उभरी हुई थी। इस चट्टान के साए में अचानक एक मंदिर नजर पड़ा, जिसके ऊपर काई जमी हुई थी। नाग ने अंबर की तरफ देखकर कहा, मुझे मारिया की खुशबू आने लगी है। अगरचे बड़ी धीमी धीमी खुशबू है, इस पुरस्कार मंदिर का खोज लगाना होगा। हेलीकॉप्टर नीचे दे आओ। नाग ने हेलीकॉप्टर को नीचे कर लिया। हेलीकॉप्टर ने झील का एक चक्कर लगाया और फिर जंगल में एक खाली जगह पर उतर गया। इंजन बंद कर दिया गया। पंखे रुक गए। जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। नाग और अंबर हेलीकॉप्टर से उतरकर दरख्तों के पास आकर रुक गए और इधर उधर देखने लगे। वो मंदिर कहाँ पर है? अंबर ने पूछा। इन दरख्तों के पीछे होगा। एक जगह दरख्तों का गहरा झुंड था। दोनों इस झुंड में से निकलकर बाहर आए तो सामने वही चट्टान थी। इस चट्टान के साए में मंदिर था, जंगलूत, पुराना, टूटा फूटा और वीरान। इसे देखकर दहशत तारी होती थी। अंबर बड़बड़ाया, मुझे 5000 साल के पुराने मंदिर याद आ गए हैं। नाग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी पुराना जमाना याद आ रहा है। अंबर जैसे ख्वाब में बोला, वो जमाना अच्छा था, पुरसकून, खामोश और गहरा गहरा पूरा असरार। अचानक जंगल में एक चीख गूंजी। अंबर ने नाग से कहा, ये चीख की आवाज कैसी है? किसी मर्द की आवाज थी, शायद किसी ने किसी को हला कर दिया। आवाज मंदिर से आ रही थी। चलो चलकर देखते हैं। दोनों झाड़ियों से गुजरते हुए मंदिर के दरवाजे पर आ गए। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा था। अंबर ने अंदर जाकर देखा, वहां सिवाय अंधेरे खामोशी के कुछ नहीं था। नाग भी मंदिर में दाखिल हो गया। मारिया की खुशबू आना बंद हो गई है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है मारिया यहाँ नहीं है। नाग बोला, मेरा ख्याल है कि मारिया इसी जगह कहीं पर कैद है। अंबर बोला, मगर इसकी खुशबू क्यों बंद हो गई है? किसी ने जादू के जोर से ऐसा किया है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन है ऐसा ही है। मेरे साथ अंदर चलो। मंदिर में पत्थर बिखरे पड़े थे। छत के साथ जाले लटक रहे थे। अंबर ने नाग को इशारा किया कि खामोश रहे। उसने किसी के कदमों की छाप सुनी। नाग पत्थरों की ओट में हो गया। आवाज आना बंद हो गई। मंदिर में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। अंबर ने सरगोशी में कहा, कोई जरूर है यहाँ। नाग ने सरगोशी में जवाब दिया, मैं दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, तुम इसी जगह रहना। नाग पत्थरों के पीछे पीछे होकर मंदिर की दूसरी तरफ निकल गया। फिर उसने एक जगह पत्थर की सीढ़ियां देखी जो जमीन के साथ नीचे जा रही थी। सीढ़ियों में अंधेरा था। नाग ने सोचा कि इसे सांप बनकर नीचे उतरना चाहिए। वो सांप की शक्ल में बदल गया। उसने सीढ़ियों पर रींग रींग कर नीचे उतरना शुरू कर दिया। 6-7 सीढ़ियां उतरने के बाद नाग को सामने एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब के दरमियान में एक कोठरी थी। नाग तालाब की सतह पर तैरता हुआ कोठरी के दरवाजे पर आ गया। यहाँ से एक बार फिर वही चीख की आवाज सुनाई दी। ये आवाज पहले से ज्यादा डरावनी थी, भयानक थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जालिम किसी को खोलते हुए कढ़ाई में डाल रहा है। नाग ने कोठरी के बंद दरवाजे का जायजा लिया। अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अचानक दरवाजा खुल गया। सांप तेजी से एक तरफ हट गया। दरवाजे से एक भयानक चेहरे वाला काला कलोटा भूतनुमा आदमी जाहिर हुआ। उसने एक आदमी की लाश उठा रखी थी। लाश गर्दन से खून टपक रहा था। भयानक भूत ने लाश को उछालकर तालाब में फेंक दिया। लाश डूब गई। भयानक भूत ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इस दौरान में नाग कोठरी में दाखिल हो गया था। कोठरी छोटी सी थी। अंदर एक दिया जल रहा था। दीवारों पर इंसानों की खोपड़ियां लटक रही थी। कोने में इंसानी पिंजरे खड़े थे। काला भूत चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर चबूतरे पर जोर से हाथ मारा। चबूतरा अपनी जगह से खिसका और फिर काला भूत पत्थर की सील पर बैठे बैठे नीचे उतर गया। सांप भी उसके साथ ही नीचे उतर गया। यहाँ उसे एक गार दिखाई दी। काला भूत सील पर से उठकर दीवार के पास गया। एक जगह उसने दीवार में हाथ डालकर किसी शय को घुमाया। दीवार शक हुई। सामने कोठरी थी। इस कोठरी में एक अजदहा कुंडली मारे बैठा था। काले भूत ने माथा टेका और हाथ जोड़कर कहा, अजीम देवता, मैंने 100 इंसानों को हलाक कर तुम्हारे कदमों पर निछावर किया है। अब तुम मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं जब चाहे गायब होकर हवा में प्रवास कर सकूं। अजदहे पर अचानक खौफ सा छा गया था। काला भूत बड़ा हैरान था कि आज इसके देवता को क्या हो गया है। नाग समझ गया कि ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। अजदहा नाग की मौजूदगी की वजह से खौफ से कांपने लगा था, क्योंकि वो इसका अजीम देवता था। नाग ने अपने आप को जाहिर करने का फैसला कर लिया। वो इंसान के रूप में काले भूत के सामने आ गया। काला
بھوت ایک انسان کو دیکھ کر غصے سے کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے خنجر نکال کر لہرایا ہی تھا کہ اژدہے نے اپنا سر جھکا لیا اور کالے بھوت کی گردن پر ڈس دیا۔ کالا بھوت دیکھتے ہی دیکھتے پانی بن کر بہہ گیا۔ اژدہے نے ناگ کے آگے جھک کر کہا، عظیم دیوتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ناگ نے اژدہے کو کیا حکم دیا؟ ماریا اس مندر میں کس جگہ قید تھی؟ امبر پر جنگل میں کیا گزری؟ یہ آپ آئندہ آنے والے ایپیسوڈ 71 میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اوکے، اسٹے کنیکٹڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، انشاءاللہ 71 ایپیسوڈ کے ساتھ۔